Hello, my dear friends. My dear friends, I'm once again back with the summary of a very important novel from William Cuthbert Faulkner. Very important 20th century American novelist who got the Nobel Prize in the year 1949 and received the award. Bear in mind, he was his name was declared for the Nobel in the year 1949, but that year he did not receive the award. He received the award in the year 1950. Remember that, a year later. So this novel that I have brought for you is As I Lay Dying. This is probably the fourth or the fifth published novel of William Faulkner. This novel is all about Bundrant's family from Jefferson. As I Lay Dying, it's all about the Bundrant's, particularly about Addie Bundrant, who is actually bedridden, and all her family members are just waiting for her death. Why? Because she is bad in health. She is in such a broken health that no possibility of her recovery. So she is lying in the bed, and all her family members, her four just kids, and her husband, Anne's Bundrant, are just waiting for her death. Her elder son, Cash is the elder son to Addie Bundrant and Anne's Bundrant. He is a skilled carpenter, and putting all the skill of carpentry in making or building a coffin for his dying mother. And Dar, the second son to the third, we have actually a girl, that is Dewey Dell. Fourth, Jewel Bundrant, and last Verdeman Bundrant, who is not more than 7 to 10 years old. So primarily this novel is all about this family, and all about their approach, their struggle in carrying the dead body of Addie to Jefferson, Mississippi, because that was the last wish of Addie Bundrant, to be buried back in Jefferson, Mississippi. So, as I told you, that Addie is down, she's bedridden, and as the novel opens, we get to know that she dies. And now, since she expressed her last wish will in front of her husband Anne's, that she wanted to be buried back in Jefferson, Mississippi. Now all their four children and Anne's husband, they decide to fulfill the last wish of Addie, and they carry the dead body to Jefferson, and on the way they face lots of difficulties and problems, one after the other. And after a 9 days long journey full of struggle and difficulties and problems,
At last, they arrive in Jefferson, where they put her under the ground, means they perform the burial ceremony of the woman. And the husband, means Anne's, surprises all, including the characters and the readers, by marrying in the end of the novel. So let's look at some important facts and just some important facts related to this novel before just going into the summary of the novel. So let's look at some important facts, like As I Lay Dying, publication of the novel 1930. Remember that this novel was published in the year 1930. What kind of genre the novel just falls in? Southern Gothic novel, black comedy. Remember that. Who just actually got the credit of publishing this novel? Jonathan Cape and Harrison Smith. Remember, these facts are very important from competition point of view. This Jonathan Cape and Harrison Justice Smith, these were the two people who get the credit of get the credit for the publication of this novel in the year 1930. Very important fact. Next, title, As I Lay Dying. Who is I? Actually none other than Eddie Bundren. Remember that. The title of the novel comes from William Morris's translation of Homer's Odyssey. William Morris translated Homer's epic Odyssey into English, and from that translation William Faulkner got the title of this novel, that is As I Lay Dying. And I of the title is none other than Ans Bundren. Now let's look at the important characters of this novel. See, Addie Bundren, spouse to Ans Bundren. Spouse means is a common noun meant meant for husband or wife. Husband can use for his wife, wife can use for her husband. So Addie Bundren, spouse, wife to Ans Bundren. Cash, a skilled carpenter, the eldest son. Remember that. Cash is a skilled carpenter. He is the eldest son to Addie Bundren and Ans Bundren. Means Addie Bundren is mother to Cash and Ans Bundren is father to Cash. Then second eldest, Dar. Remember that. Narrator of 19 chapters. Remember that. The total number of the chapters are 59. And out of this 59 chapters, 19 chapters, we hear the voice of one character, that is Dar. Dar, second eldest son to Addie Bundren and Ans Bundren. Remember that. Very important. 19 chapters. Second son. And how many years senior to Cash? Dar is 2 years junior to Cash. Next, he goes insane in the end, and it's all because of that. He is found guilty of just setting fire to the barn where they spend the night, and in the end of the novel, he is sent to a local asylum.
Salem, name of the place where the mad people were treated in the olden days. So, second son, that is just Dar, 2 years junior to Cash. He is the narrative voice in 19 chapters. Then Jules Bandren, third son to Addie and Ans. And remember that very important fact. Jules is not the biological, remember that Jules is not the biological, actually son to Addie and Ans. He is the half brother to Cash, Dar, Dewey, and Vardhaman, the last one. Why? Because he is the just he is the result of Addie and Reverend Whitefield union. Reverend respected Whitefield is a nobleman from the place where the Bundrens live. And once Addie had a kind of affair with this person, and the result of that just relation was the birth of Jules. So Jules is not the just biological son to Addie and Ans, but he is the half brother to the remaining three. Remember that. So he is illegitimate of Addie and Reverend Whitefield. Next, Dewey Dell Bundren, only daughter impregnated by Leif, a farmer, and this only daughter Ans and Addie have is Dewey Dell, and she is probably 17 years old, young girl, and only at the age of 17 she gets conceived. And who is responsible for this? None other than a young farmer from the place they live in, that is Leif. And now Leif has given her $10 for getting herself aborted. Remember this fact. So Dewey Dell Bundren, only daughter, impregnated by Leif, and tries two unsuccessful attempts to abort herself on way to Jefferson, and she makes two attempts. Remember that she makes two attempts to get herself aborted on her way to Jefferson. One on the way, and the second one when they arrive in Jefferson. But both of the time she is unsuccessful in aborting. Now last, Vardhaman Bundren, youngest son, between 7 to 10 years. Now next important character, Vernon Tulle, good friend to Bundrens and their neighbors. And next, Cora Tulle. Cora Tulle is the wife to just Vernon Tulle, his wife, and she's more religious in comparison with the Vernon Tulle, her husband. Next, Eula Tulle, their daughter to Vernon and just Cora Tulle. Next, Peabody, Bundren's doctor. Bundrens have their family doctor, and that is none other than Peabody. Peabody is the name of the family doctor to the Bundrens. A farmer, that is Leif. Leif, very important character. Why? Because he is responsible for the pregnancy to just a young Dewey Dell. Leif, a farmer, he is responsible for
getting her pregnant, and that's why gives her $10, gives $10 to Dewey Dell for abortion. Next, Samson, a farmer, another character, and Rachel, Samson's wife. These are the some important characters. One more is Gillespie. Gillespie is the owner of that farmland where the Bundrens spend the night on their way to Jefferson. These are the important characters, and all you need to bear in mind all these characters. तो आपको इन कैरेक्टर्स को दिमाग में रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये नॉवेल कौन सी है, एज आई ले डाइंग। इसको विलियम फाकनर ने 1930 में पब्लिश करा। पब्लिश करने का जिसको क्रेडिट मिलता है वो है हमारे जोनाथन केप एंड हैरिसन स्मिथ। जोनाथन केप एंड हैरिसन स्मिथ ने इस नॉवल को 1930 में पब्लिश करा। नॉवल का अगला बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, नॉवल का जो टाइटल है एज आई ले डाइंग, इसका टाइटल विलियम मॉरिस के ट्रांसलेशन, विलियम मॉरिस ने होमर की एपिक ऑडेसी को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा। उसी इंग्लिश वर्जन ट्रांसलेशन से विलियम मॉरिस के होमर के ऑडेसी के ट्रांसलेशन से विलियम फॉकनर ने इस नॉवल का टाइटल लिया। याद रखिएगा, टाइटल इंपॉर्टेंट है कि टाइटल का सोर्स कहां से है। तो टाइटल का सोर्स विलियम मॉरिस के होमर के ओडेसी के ट्रांसलेशन से इसका टाइटल आता है। फिर ये नॉवल किसकी कहानी है? ये नॉवल जो है बंड्रन्स फैमिली की कहानी है। ये बंड्रन्स फैमिली एक्चुअली है कहां के? जेफरसन मिसिसिपी के हैं। जब नॉवल अब अगला देख लेते हैं। नॉवल, ये जो नॉवल है ये इसकी सेटिंग वही है जो विलियम फाकनर के दूसरे इंपॉर्टेंट नॉवेल्स की है, जो है सदर्न जो है पार्ट ऑफ अमेरिका, वो सदर्न अमेरिका मिसिसिपी, वहीं पे इसकी सेटिंग है। नॉवल किसके बारे में है? बंड्रन फैमिली। इस बंड्रन फैमिली में है कौन हेड? पहला है हमारा एडी बंड्रन। यही एज आई ले डाइंग, इस टाइटल में जो ये आए हैं, ये जो एज आई ले डाइंग, जो मैं लेटी मर रही, ये कौन है? एडी बंड्रन है। एडी बंड्रन, इसका हस्बैंड है एंस बंड्रन। इनके टोटल 4 जो है बच्चे हैं। इनका जो पहला बेटा है उसका नाम है कैश, वो एक एक्सपर्ट कारपेंटर, एक स्किल्ड कारपेंटर, एक बहुत अच्छा कारपेंटर है। दूसरा इनका बेटा है टार्ल, जो कैश से 2 साल छोटा है। तीसरी इनकी बेटी है तीसरा इनका जो 5 बच्चे। तीसरी इनकी जो बेटा है वो है जूल है, JEWEL, जूल जो है एंस और एडी का लेजिटिमेट बायोलॉजिकल सन नहीं है। एडी का एक वक्त जहां पे रह रहे हैं ये लोग, वहां के एक नोबल व्यक्ति जिनका नाम रहता है रेवरेंड व्हाइटफील्ड, उनसे उसका एक तरह का अफेयर था। उस अफेयर से इनको उस अफेयर में जो एडी है वो कंसीव हो जाती और ये जूल पैदा होता। तो जूल बंड्रन, वो एडी और एंस का बायोलॉजिकल सन नहीं है, बट इलेजिटिमेट है, अवैध है। किसका? एडी का और रेवरेंड व्हाइटफील्ड का। इस तरह से जूल जो है कैश का, डार्ल का, फिर इनकी जो बेटी है एंस और एडी की जिसका नाम है ड्यूवी डेल, उसका, और फिर इनका जो सबसे छोटा बेटा है दैट इज वर्धमन जस्ट बंड्रन, जो 7 से 10 साल के बीच का है। इन 4 का ये हाफ ब्रदर है।
ये तीसरा, चौथा इनकी बेटी है जिसका नाम है ड्यूवी डेल। जब नॉवल ओपन हो रही तो हम देखते हैं कि उसकी मदर बीमार हैं, शी इज जस्ट गोइंग टू डाई, मरने वाली हैं, बट वो लीस्ट कंसर्न्ड है, वो बहुत ज्यादा चिंतित नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान है। वाई? बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो ज्यादा परेशान है। 17 साल की है अप्रॉक्स, लेकिन उसी के पास रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है, एक फार्मर है, यंग फार्मर लेफ, उसने इसको कंसीव कर दिया हुआ है, प्रेग्नेंट कर दिया हुआ। सो शी इज नाउ मोर टेंस, शी इज इन अ काइंड ऑफ टेंशन में है कि कैसे वो इस जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करे। इसलिए मदर बीमार हैं, मर रही, बट शी इज लीस्ट कंसर्न्ड, वो उतनी चिंतित नहीं है जितनी उसको होना चाहिए। लेफ ने उसे $10 भी दे रखे हैं कि किसी तरह से वो अपने को अबॉर्ट कर ले। फिर अगला जो आता है हमारा सबसे इनका छोटा बच्चा एंस और एडी का, वो है वर्डमन जस्ट बंड्रन। छोटा है, 7 से 10 साल के बीच में, तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड अबाउट हिज इनोसेंस एंड ऑल दैट। ये शॉर्ट में इनका जो है, मैंने आपको इस नॉवल के इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स दिए और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बताए। अब आइए इसकी जो है हम समरी को देखते हैं। क्या होता है, नॉवल शुरू होता है, समरी। व्हेन द नॉवल ओपन्स, यानी जब नॉवल शुरू होता है, एडी द टाइटल कैरेक्टर, वही टाइटल कैरेक्टर, यानी जो आए है, ये कौन है, एडी है, यही लेटी मर रही है। तो जब नॉवल शुरू होता है तो एडी इज सीरियसली सिक, हमें पता चलता है। 59 चैप्टर्स में है ये नॉवल। नॉवल के शुरू के चैप्टर्स में हम देखते हैं कि एडी बंड्रन बीमार है, सीरियसली सिक है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू पास अवे सून, और ऐसा लग रहा कि ये जल्दी मर जाएगी। एक्सपेक्टेड कि ऐसा माना जा रहा है, इनके फैमिली मेंबर्स ऐसा मान रहे हैं, पास अवे सून की जल्दी मर जाएगी। हर एल्डेस्ट सन, इनका जो बड़ा बेटा है एडी का और एंस का, जिसका नाम है कैश, इज बिजी इन मेकिंग हर अ कॉफिन। यहां आ कर लीजिएगा। जब हम देखते हैं नॉवल शुरू होती है तो पता चलता है एडी बीमार है, मर रही है। उसका जो बड़ा बेटा है वो एक स्किलफुल कारपेंटर है, वो उसके लिए कॉफिन बना रहा है, वो कॉफिन ताबूत जिसमें बॉडी को रखते, वो अपनी मां के लिए बना रहा है। और ठीक उसी रूम के बाहर बना रहा है जिस रूम में वो लेटी हुई है। एक दिन विंडो के पास बैठ के वो देख भी रही है कि कैसे उसका बेटा बिजी है, उसका बड़ा बेटा बिजी है उसके लिए कॉफिन बनाने में। देखिए दिया भी है, बिजी इन मेकिंग हर अ कॉफिन राइट आउटसाइड द रूम। सॉरी, शी इज बेडरिडन यानी कि बिस्तर पे पड़ी हुई है, विद ड्यूवी डेल फैनिंग हर, और इसकी जो बेटी है जो डिस्पैशनेट है अपनी मां के बारे में, कोई अपनी मां के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं पा रही, बिकॉज उसके पास एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, शी इज प्रेग्नेंट, और वो उसे किसी तरह अबॉर्ट करना है अपने आप को, तो उसी के टेंशन में वो है। मां के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। हाँ, मां के पास दिख रहा है, मां के पास बैठी है और उसको फैन कर रही है, उसको पंखा कर रही है। एंड हर हस्बैंड, और उसका जो हस्बैंड है किसका, एडी का, वो कहां है, आउटसाइड, वो बाहर है, रूम के बाहर है, वेटिंग फॉर हर डिमाइस, और शायद वो वेट कर रहा है, ये लोग सारे वेट कर रहे हैं उसके मरने का। और वही होता है, नाउ शी डाइज, आगे हमें तुरंत पता चलता है कि वो मर जाती है। जब मरती है, बट डार्ल एंड वर्डमन आर आउट, जब एडी मरती है तो उनका जो है दूसरा नंबर का बेटा और उनका जो तीसरे नंबर का बेटा है वो दोनों नहीं होते हैं, याद रखिएगा, डार्ल और जूल, दीज आर दी सेकेंड एंड थर्ड नंबर सन टू एडी एंड एंस। एडी और एंस के तीसरे चौथे बेटे हैं, ये दोनों घर पे नहीं होते हैं, क्योंकि शायद वो उसके मरने के एक दिन पहले या शायद उसी दिन वो निकल जाते हैं।
किसी इंपॉर्टेंट जो है काम को करने के लिए किसकी तरफ से, किसके लिए, अपने जो है अच्छे पड़ोसी जो हैं इनके, आपके कौन है, वर्नन ट्यूल और कोरा ट्यूल, इनके जो पड़ोसी हैं उन्हीं के किसी सर्टेन इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए दोनों निकल जाते हैं। लेकिन जब वो वहां से लौट रहे होते हैं तो दूर ही से उन्हें दिख जाता है, कुछ इस तरह के साइंस उनको दिख जाते हैं, शायद उनको वल्चर्स या कुछ दिखते हैं, कुछ बर्ड, जिनसे उनको पता चल जाता है, कंफर्म हो जाता है कि दैट देयर मदर इज नो मोर, कि उनकी मां अब नहीं है। तो वो नहीं है जब वो उसकी मां मरती है, डूइंग सम वर्क एट द बिहेस्ट ऑफ वर्नन ट्यूल, मैंने आपको बताया, एंड कोरा ट्यूल, देयर नेबर्स। इनके मरने के जो इट रेन्स हैवली द नाइट आफ्टर एडी डाइज, यानी कि मान लीजिए आज एडी मरती है, आज रात को एडी मरती है और उसकी जो अगली रात भारी बारिश होती है, बहुत तगड़ी बारिश होती है, वहां पर इतनी ज्यादा बारिश होती है कि वहां की जो नदी है उसका जो वाटर लेवल बहुत ही हाई होता है, वो बहुत ही स्वेल करती है वो रिवर, बहुत पानी हो जाता है, जिसके कारण उस रिवर पे जो भी ब्रिजेस हैं, टेम्परेरी या परमानेंट जो भी ब्रिजेस हैं, दे आर वॉश्ड अवे, सब बह जाते हैं, सब टूट जाते हैं। और इनको इन ब्रिजेस की जरूरत थी बर्डन्स को, क्योंकि इनको इनकी अपनी इनको जो है एडी की बॉडी को जेफरसन लेके जाना, और जेफरसन जाने के लिए उन्हें उन ब्रिजेस का यूज करना था, क्योंकि मरने से पहले जो ये एडी रहती है वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि वो उसकी अंतिम इच्छा है कि वो चाहती है कि जेफरसन में उसको दफनाया जाए, यहां नहीं दफनाया जाना चाहती है। तो देखिए क्या होता है, इट रेन्स हैवली, भारी बारिश होती है, द नाइट आफ्टर एडी डाइज, एडी के मरने के बाद वाली रात भारी बारिश होती है, कॉजिंग द रिवर टू राइज, जिसके कारण रिवर बहुत राइज करती है, उसका वाटर बहुत ऊपर हो जाता है, उसमें पानी बहुत हो जाता है, एंड वॉश अवे द ब्रिजेस, और सारे वो जो उस पे जो पुल होते हैं उनको बहा ले जाता। द बंटन फैमिली सपोजेस टू यूज टू रीच जेफरसन, और इन ब्रिजेस को बंटन्स को यूज करना था जेफरसन पहुंचने के लिए, टू परफॉर्म द बैरियल सेरेमनी ऑफ एडी, क्योंकि एडी का जो बैरियल सेरेमनी, उसका जो है दफनाने का जो है जो दफनाने वाली जो प्रक्रिया है वहां उन्हें जाके करनी है। क्यों? क्योंकि एज हर लास्ट विश, क्योंकि ये एडी की लास्ट विश थी, उसने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे मरने पे यहां नहीं जेफरसन में दफनाना। तो अब उन्हें जाना है, और जो नदी उन्हें क्रॉस करनी है उस पर अब कोई ब्रिज नहीं है, क्योंकि बारिश के कारण इतनी बाढ़ आई कि सारे ब्रिजेस वॉश हो जाते, बह जाते। ऑल बंडरन्स स्टार्ट इन अ वैगन, अब इन्होंने एक गाड़ी, एक घोड़ा गाड़ी की तरह से कह सकते हैं, खच्चर गाड़ी, जिसको कुछ म्यूल्स यानी खच्चर की सहायता से ये डिसाइड करते हैं कि म्यूल एक वैगन ये घोड़ा गाड़ी करेंगे, और उसमें से ये जाएंगे लेकर के इसकी बॉडी को ये वहीं करेंगे, वहीं दफनाएंगे जेफरसन में। तो अब ये सारी तैयारी के साथ चल देते हैं घोड़ा गाड़ी करके, जिसको म्यूल्स ड्रैग करते हैं, घसीटते हैं जाने के लिए वहां, कहां पे, जेफरसन, इन अ वैगन विद नॉन एम्बाम्ड बॉडी, और जो बॉडी रहती है एडी की उस पर उन्होंने किसी तरह का उसको जो है प्रिजर्व करने के लिए, उसको डिकेज से यानी सड़ने से बचाने के लिए उन्होंने किसी तरह का कोई उसके ऊपर कोई पेस्ट नहीं लगाते, दैट इज एम्बाम। एम्बाम ग्रीस में आप जानते हैं, यूनान में जो है कुछ बॉडीज को क्या करा जाता था, प्रिजर्व करा जाता था, उनके ऊपर एक तरह का एक पेस्ट लगा के, दैट वाज एम्बाम, उसे हम एम्बाम कहते, जिससे वो अपने यहाँ के डेड बॉडीज को, सर्टेन डेड बॉडीज को प्रिजर्व करते, उन प्रिजर्व बॉडीज को ममीज कहा जाता, आप जानते। तो इस जो है एडी की बॉडी को ये बिना किसी पेस्ट को लगाए हुए जो उसके डिके को रोकता, ये लेके चल देते हैं,
They face a lot of difficulties on the way, like going without sleep and food and spending nights under open sky in barns. रास्ते में जैसे मैंने बताया ये ढेर सारी प्रॉब्लम्स फेस करते, जैसे बिना खाए बिना सोए इन्हें चलना पड़ता। कई जगह कई बार इन्हें रात कहाँ किसके खुले खुले आसमान के नीचे ओपन फील्ड में, बार्न यानी ओपन फील्ड वो जगह जहां पे अनाज वनाज इकट्ठा करते उसको हम कहते हैं बार्न, BARN। तो खुले आसमान के नीचे बार्न यानी कि खलिहानों में इन्हें कई रातें गुजारनी पड़ती, क्योंकि जो ये एंस है ये किसी तरह की थोड़ा सी ये ऑब्स्टिनेट तरह का आदमी है, बड़ा जिद्दी टाइप का, अड़ियल टाइप का, ये हेल्प नहीं लेना चाहता किसी की। तो कई जगह इसे हेल्प मिलती है, हेल्प ऑफर होती है, बट ही डज नॉट एक्सेप्ट द हेल्प। एंस सेल्स द फेवरेट हॉर्स ऑफ जूल। रास्ते में ये एंस है जो जूल का फेवरेट हॉर्स है वो बेच देता है, जिससे वो बहुत ही जूल हर्ट होता है। टू मैनेज एक्सपेंसेस टू सम एक्सटेंट, वही खर्च को थोड़ा सा, रास्ते के खर्च को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए जो है एंस फादर अपने बेटे, तीसरे बेटे के जो है घोड़े को बेच देता। ये याद रखिएगा, ये हम और आप जानते हैं कि जूल एंस का बेटा नहीं है, बायोलॉजिकल सन नहीं है, ये एडी और रेवरेंड वाइटफील्ड के अफेयर का जो है रिजल्ट है। सॉरी, ये आपको ध्यान रखना, ये नहीं जानता है, लेकिन क्या करता है कि ये इसके घोड़े को बेच देता है कुछ एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए रास्ते में। यहां जूल गेट्स हर्ट, जूल इससे बहुत दुखी होता है, वो चाहता है कि वहां से रन अवे, छोड़ दे इनको वहां से, लेकिन छोड़ नहीं पाता, अपनी फैमिली को इनके साथ ही कंटिन्यू करता है। जूल गेट्स हर्ट, दुखी होता है, बट ही कंटिन्यूज विद द फैमिली। कैश ब्रेक्स हिज लेग, कैश का जो पैर है शायद वो पहले से ही टूटा रहता है, लेकिन वहां पे जब वो शायद रिवर को क्रॉस कर रहे होते हैं तो वहां पे जो वैगन है, जो म्यूल्स जो खच्चर खींच रहे हैं वो शायद अपने बैलेंस को लूज कर जाते और टूट जाता वो वैगन, वो म्यूल्स डूब भी जाते रिवर में। और उस दौरान जो है जो कॉफिन है, लगता है कि वो डूब जाएगी, वो भी बह के चली जाएगी, पानी बहा ले जाएगा। उसको बचाने के चक्कर में, स्ट्रगल में, कैश का जो पैर पहले से इंजर्ड है उसमें फिर से वही इंजरी हो जाती है उसको। फिर वो लोग टेम्परेरी जो है मेकशिफ्ट कोई कास्ट का यूज करते हैं उसको कवर करने के लिए, जिससे उसका पेन और बढ़ जाता है। देखिए क्या होता है, तो क्या होता है, इसका पैर फिर वहीं टूट जाता है या इसको चोट लग जाती है समहाउ, और फिर समहाउ कवर्स विद अ टेम्परेरी कास्ट, किसी तरह टेम्परेरी कास्ट बना के वो जो लगाते हैं टूटने वाले हिस्से पे पैर के, वो देखो हम कास्ट कहते हैं, उसके ऊपर किसी तरह वो जो प्लास्टर उसको लगाते हैं टेम्परेरी करके। दैट इंक्रीजेस हिज पेन मोर, जिसके उसका पेन और बढ़ जाता है जो टेम्परेरी कास्ट लगाते। ट्वाइस द फैमिली लूजेस एडिस कॉफिन, वे मैंने बताया एक बार, तो जब वो वैगन क्रॉस हो रहा होता है रिवर से, वहां शायद वो म्यूल्स जो रिवर डिस्टर्ब का फ्लो इतना ज्यादा है कि वो म्यूल्स डूब जाते, वैगन पूरी डिस्टर्ब हो जाती है और उसमें से उनका कॉफिन, एडी का कॉफिन बाहर आके उसको लगता है कि जो है पानी बहा ले जाएगा, लेकिन समहाउ मैनेज करते हैं। वहां पे एक बार जो है इनको लगता है कि ये कॉफिन चला जाएगा इनके हाथ से, एडी की बॉडी निकल जाएगी ऐसे, वहां एक बार खोते खोते बचते हैं इसकी बॉडी को, वंस वाइल क्रॉसिंग द रिवर, और दूसरा सेकेंड टाइम द फायर, और दूसरी बार जब ये एक बार में रह रहे होते हैं जहां पर ऐसा माना जाता है कि डार्ल ने ही गुस्से में, क्योंकि वो बहुत चढ़ गया रहता है इन सारी चीजों को, ये जो रास्ते में जो कॉम्प्लिकेशंस, ये हार्डशिप फेस कर रहे हैं, जिसको लगता है ये सिर्फ बॉडी जो अपनी माँ के ले जा रही है इसी के कारण ये सारा कुछ हो रहा, इसलिए मुसीबत ये झेल रहे हैं, तो शायद वो जानबूझ के वहां वो आग लगा देता है ताकि उसमें कॉफिन जल जाए, सब कुछ फिनिश हो जाए, इनको इन सारी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। लेकिन वहां एडी का अपना सबसे छोटा डियरेस्ट सन जो रहता है वर्डमन, वो उसे वहां बचा लेता है उस आग से, वहां वो बचाता है आग से, वो होता है। तो सेकेंड टाइम द फायर
आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 9 days, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, 9 दिन की यात्रा करने के बाद और उस यात्रा के दौरान ढेर सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद, 9 days याद रखना आपको, दे रीच जेफरसन, वो जेफरसन पहुंचने कितने दिनों बाद? 9 दिन की यात्रा करने के बाद। कैश's लेग नीड्स मेडिकल केयर, यहां पहुंचने के बाद कैश को तुरंत मेडिकल जो है केयर की जरूरत है अपने पैर के लिए। ड्यूवी गोज टू अ फार्मेसी, ड्यूवी एक फार्मेसी, एक अटेम्प्ट इसका फेल हो चुका है जो है मेडिसिन, अबॉर्शन वाली मेडिसिन लेने का। अब यहाँ दोबारा ये तुरंत वहां जाती एक फार्मेसी स्टोर में उसी मेडिसिन के लिए जो उसको अनवांटेड प्रेगनेंसी को जिससे वो कर पाए अबॉर्ट, तो वहां ये पहुंचती है। गोज टू अ फार्मेसी स्टोर यहां फॉर अबॉर्शन पिल के लिए वो वहां जाती है। टू अबॉर्ट, ताकि वो खुद को अबॉर्ट कर पाए। इन दी फार्मेसी में उस दवा की दुकान में शी हैज गॉट टू गिव द सेक्सुअल फेवर टू क्लार्क स्कीट मैकगाउन। वहां पे एक क्लर्क रहता है उस फार्मेसी में जिसका नाम रहता है स्कीट मैकगाउन। वो समझ जाता है, वहां वो हिचकिचाती है, सीधे सीधे जानते हैं ओनली 17 years की ये लड़की है, वहां हिचकिचा के वो डायरेक्ट बोल नहीं पाती कि हाँ उसे एक जो है अबॉर्शन पिल्स या ऐसी मेडिसिन चाहिए जिससे वो अपनी अनवांटेड प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर पाए। तो वो हिचकिचाते हुए इधर उधर से बताने की कोशिश करती है और वो समझ जाता है कि किस तरह के नीड में है, तो वो उससे सेक्सुअल फेवर लेता है। वहां पे उसको सेलर में ले जाके अंडरग्राउंड जो फार्मेसी का जो पार्ट है वहां ले जा करके ही एक्सप्लॉइट्स, वो एक्सप्लॉइट करता है इस 17-year-old गर्ल को इन रिटर्न ऑफ गिविंग हर व्हाट, जस्ट अबॉर्शन पिल, अबॉर्शन मेडिसिन। तो उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है और बदले में जब वो मेडिसिन देता है तो उसे पता चलता है कि वो मेडिसिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ टैल्कम पाउडर है जो हम लगाते हैं। ये होता है वहां पे इसके साथ। तो फॉर शी डजंट नो doesn't know how to ask for the pills, but she ends up getting nothing but, यहां कर लीजिएगा but टेल्कम पाउडर, लेकिन वहां बेचारी को कुछ नहीं मिल पाता सिवाय टेल्कम पाउडर के। नाउ एंस बोरो शॉवल्स वो जो टूल्स होते जो हम खोदने के लिए ग्रेव को, कब्र को खोदने के लिए यूज करते हैं। तो वहां जो एंस है आप देखता है उसकी बॉडी बहुत ही खराब कंडीशन है, उसकी बॉडी से स्टेंच बदबू आ रही है, बॉडी सड़ रही है एडी की। तो वो जो है बोरो करता, उधार लेता है कुछ शॉवल्स उसको खोदने के लिए जमीन को, ताकि जो है उसे दफनाया जा सके। तो एंस बोरोस करता शॉवल्स को एंड टुगेदर, और साथ सारे ऑल फैमिली मेंबर्स, पूरे परिवार वाले, बैरी दी डिकम्पोजिंग बॉडी ऑफ एडी। अब वो उसकी सड़ती, डिकम्पोजिंग में सड़ती हुई बॉडी को दफनाते हैं और वो बॉडी गिविंग आउट फाउल स्टेंच, जो बदबू दे रही होती है। आफ्टर दैट, उसके बाद, Darl is held responsible for the fire that broke out on the barn, कर लीजिए barn पर। तो अब जो है इस होने के बाद अब एडी को दफनाया जा चुका है, एडी का अंतिम संस्कार हो चुका है। इसी बीच किसी उस फार्मर के कंप्लेंट पे पुलिस आती है और इसे जो डार्ल को पकड़ती है। जहां ये लोग बहाना करते हैं, बताते हैं कि एक्चुअली जो है डार्ल, और पहले शायद बताया रहते हैं कि डार्ल जो है वो मेंटली स्टेबल नहीं है, मेंटली नॉर्मल नहीं है, शायद उसी ने आग लगा दी। तो यहाँ आती है पुलिस, शायद इसे पकड़ती है और उसे जो है एसाइलम, पागल खाने भेज दिया जाता है इलाज के लिए डार्ल को। देखिए यहाँ, सो दे स्टेड फॉर द नाइट ऑन देयर वे टू जेफरसन। सो जब वो जेफरसन को आ रहे थे तो जिस बांध में, खलिहान में ये रुके थे रात में, एक खलिहान पे, वहां उसने आग लगा दी थी। मैंने बताया आपको क्यों आग लगा दी थी, कि ये पक चुका था, परेशान हो चुका था उन सारे ट्रबल से, उन प्रॉब्लम से।
जो ये फेस कर रहे थे इस बॉडी को कैरी करने के, उसने सोचा आग लगा दो, इसी में जल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वर्डमैन सबसे छोटे बेटे ने मां की बॉडी को बचा लिया। वहां क्या होता है, ही इज सेंट टू एसाइलम, उसे अस्पताल भेज दिया जाता है पागलों के इलाज के लिए। फॉर द फैमिली डिक्लेयर्स हिम मेंटली अबनॉर्मल, क्योंकि फैमिली इसमें डिक्लेयर करती थी कि ये मेंटली अबनॉर्मल है, ताकि उसे बच जाए, उसे जेल होल ना हो। एंस गेट्स ऑल द मनी फ्रॉम ड्यूवी, लेफ गेव हर फॉर अबॉर्शन। जहां जो एंस है, जो फादर है, वो अपनी बेटी जो है ड्यूवी डेल से सारे पैसे वो ले लेता है। वो पैसे जो उस यंग फार्मर, उस किसान ने दिए थे जिसने जो है ड्यूवी को प्रेग्नेंट करा हुआ, उसने उसको $10 दिया था इसको जो है प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए। तो वो पैसे वो ले लेता है एंस अपनी बेटी से, और क्या करता है उस पैसे का, एंड ही बाइज न्यू सेट ऑफ टीथ, अपने लिए नए दांत का सेट खरीदता है। एंड द नॉवल एंड, जब नॉवल खत्म होती है हम देखते हैं एंड्स विद द मैरिज ऑफ एंस। और नॉवल जब हम खत्म होती है तो हम देखते हैं खत्म होने पे कि एंस उसी औरत से शादी कर लेता है जिससे उसने वो शॉवल्स, वो खोदने वाले, जमीन को खोदने वाले जो है टूल्स को उधार लिया था उसी से शादी करके, और आके उसको इंट्रोड्यूस करता है अपने बच्चों के साथ। यहाँ नॉवल एंड हो जाता है। तो होप डियर फ्रेंड्स, ये नॉवल की समरी, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए, ये आपको समझ में आए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि दीज आर दी फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं विल हेल्प यू क्रैकिंग द अपकमिंग पीजीटी और एनी अदर कॉम्पिटिशन। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो फैक्ट्स हैं, स्टोरी का जो प्लॉट है वो समझना है, कैरेक्टर्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि जैसे टाइटल कहाँ से आ रहा, विलियम मॉरिस के होमर की ओडिसी के ट्रांसलेशन से, पब्लिकेशन 1930, नॉवल के पब्लिशर कौन है, हमारे हैं जोनाथन केप एंड हैरिसन स्मिथ हैं। नॉवल कितने चैप्टर्स में डिवाइड है, 59 चैप्टर्स में। नॉवल में अकेला एक कैरेक्टर डार्ल है जो इनका एंस और एडी का दूसरा बेटा है। ये ही अकेले लगभग 59 चैप्टर्स के 19 चैप्टर्स में यही बोलता हुआ दिख रहा है। उसके बाद कैरेक्टर्स जैसे मैंने बताया, एडी मदर, यही मर रही है, यही आए है टाइटल में, ठीक है। इसका हस्बैंड एंस, एडी और एंस, इनके 5 बच्चे हैं। पहला है आपका, फिर से मैं बता रहा हूं, कैश, जो एक स्किल्ड कारपेंटर है, जान रहा उसकी मां मरने वाले तो उसके लिए कॉफिन बना रहा। फिर दूसरा डार्ल है, तीसरा जूल है, जो एडी और एंस का इलेजिटिमेट सन है। ध्यान रखना, ये एडी और रेवरेंड वाइटफील्ड के अफेयर का जो है अफेयर से होता है। अगला इनकी बेटी है, चौथी, दैट इज ड्यूवी डेल, 5 में से ये एक बेटी है। और 5वां है वर्डमन बंडरन, जो 7 से 10 साल के बीच का है, जो बहुत ही अटैच्ड है। उसे कुछ पता नहीं कि उसकी मां के साथ क्या हुआ है। कि एक बार ऐसा होता है जब उसको कॉफिन में बंद कर, उसे लगता है कि उसकी मां उस कॉफिन में सांसें नहीं ले पाएगी, तो वो उसमें से 2 होल बना देता है उस कॉफिन में। और वो जब ड्रिल करता है तो ड्रिल करते हुए मशीन उसके फेस को पैस कर देती है। ये है फिर जो है इंपॉर्टेंट जो और कैरेक्टर, वर्नन ट्यूल, हस्बैंड कोरा ट्यूल, उसकी वाइफ, ये इनके पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे इनसे संबंध है। इनकी एक बेटी है, कौन, यूला ट्यूल। फिर इनका एक फैमिली डॉक्टर है, पी बारी। फिर इनके पास इनके कुछ और कैरेक्टर हैं, जैसे लेफ, जिसने जो है ड्यूवी डेल को प्रेग्नेंट कर रखा, और उसे कितने पैसे दिए भी, इतना कितने डॉलर दिए भी आपसे पूछा जा सकता, तो $10 वो दिए रहता है। उसके बाद 1-2 और कैरेक्टर, जैसे सैमसन, एक फार्मर, रैशल उसकी वाइफ, और एक गिलस्पी है जिसके फार्म पर शायद ये रुके थे और जहां आग लगी थी, ये भी
इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स हैं, बट दैट कैरेक्टर्स और दोस कैरेक्टर्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट. इतना ही आपको दिमाग में रखना है. So hope, dear friends, this summary of mine and these facts will help you understand this very particular novel of William Faulkner. Thank you, my dear friends.